तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं उठूँगी, ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, टिफ़िन पैक करूँगी और ऑफिस चली जाऊँगी। जिस पीजी में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे इसको दूध बोलते हैं, बट बेसिकली ये शक्कर और पानी है, शुगर वाटर। ये आप देख सकते हो, ये मेरा लंच है। इसके अंदर पानी जैसा सांभर है और ये राइस है। हेलो, why you need NSP hotel number? Okay. Then for the NSP. तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं। बहुत हेक्टिक दिन था, बट अगेन बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात तो क्लियर है, आप बुक्स में जो भी पढ़ते हो वो ठीक है, वो एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, बट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनलेस एंड अनटिल यू बिकम इंडस्ट्री रेडी और मार्केट रेडी, देयर इज नो यूज जो भी आपने पढ़ा है या कुछ भी किया है। तो एवरीबडी जिसको भी ऐसे जॉब करने की इच्छा है या कुछ, बिजनेस तो टोटली अलग बात है, बट बिजनेस के लिए ऑल्सो यू मस्ट हैव गुड नॉलेज इन एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू व्हेन यू वांट टू क्या बोलते हैं, ये डेस्क वर्क जो है या फिर वैसी जॉब्स में इफ यू वांट टू एंड अप, यू विल हैव टू मेक श्योर कि मतलब आप डे वन से अपना बेस्ट यू विल हैव टू डू नो मैटर वट एवर स्ट्रीम से यू बिलोंग, मतलब कि बी इट IT, नॉन IT या फिर कॉमर्स, आर्ट्स, इफ एट ऑल यू वांट टू एंड अप डूइंग अ जॉब ना,
you have to make sure that you are market ready. You have to make sure that you are industry ready. Actually, you have to put in that hard work. When you come out, when you do internships or you know, or any work for that matter, it really takes a lot to matlab, to reach that level. And this is why now I'm able to realize that why firms, industries, companies always recruit experienced people, because undoubtedly there's no you know क्या बोलते हैं, I mean to say कि no doubt that freshers should be given an opportunity, should be given a chance, but then little to they should have that prepping up with them and then they should enter. This is what I feel actually, because at the end what happens is either both of these happens. You end up looking like a fool also, unless and until you're so brilliant to grasp things real quick, and at the same time whosoever you're working under whosoever you're working, your manager, the associate, or anybody for that matter, they would start feeling कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता यार, we need a lot, मतलब कि they will have a lot of expectations. At the same time they will feel कि a lot of efforts has to be put into this particular person. ऐसा ultimately they will start feeling left out. But then again, hard work pays off, and hard work is something that never fails. So I believe one should be honest, loyal, working hard and everything. But all of these, it is that one side of the coin. But when it comes to the other side of the coin, you have to have that develop यार, इतना तो है अभी, मतलब और आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की अपनी पढ़ाई में कुछ भी किया है, देयर इज अल्टीमेटली नो रिजल्ट या नो प्रॉफिट, या उससे कि हम अभी बहुत क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्वियस हो जाएगा बोलना कि अरे हम पैसे ही कमाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं या कुछ ऐसा नहीं. अल्टीमेटली मनी इज द गोल. Now depends how you make money and what kind of money matters to you, कि मतलब ईमानदारी से ही चाहिए वो सब मतलब totally that is one different part of the discussion. But then I feel when you invest so much when it comes to your education, you should be very sure कि the moment I'm going to step into the market, I have to be that market ready, I have to be that industry ready, Only then people out there are going to respect you, are going to look up to you, etc. etc. No doubt they'll give you time to learn, but that learning time, in that learning process should be smooth and should be easy. And that ease and that smoothness has to get created by us only. There's only मतलब I तो फील कि एवरीबडी इज, मतलब जो भी फर्म है, जो भी है, कंपनीज है, पीपल आर रेडी टू टीच, बट द टीचिंग दैट हैपेंस इन द स्कूल एंड द टीचिंग दैट हैपेंस इन ऑफिसेज एंड एवरीथिंग, दैट इज जमीन आसमान का फर्क. नोबडी इज गोइंग टू सिट with you and nobody is going to spoon feed you things. You will have to know कि अरे भाई अगर ये एक लाइन बोली तो उसकी 10 इंटरप्रिटेशंस निकालनी आनी ही चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट एट द एंड मैटर्स. सो यस, टू बी फ्रैंक मैं सच बात बताऊँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की इतनी सी भी पार्ट अगर कभी बन पाई, आई डोंट थिंक दूर तक भी पॉसिबिलिटी है, बट अगर कभी भी बन पाई तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसमें इतने सारे मेजर चेंजेस लाऊँ ना,
सबसे पहले तो आई विल घुसाओ दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन द, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, इन द कोर्स. यस, आई विल पुट इन दिस फर्स्ट कि अरे भाई, मतलब एवरी सब्जेक्ट को ना आई डिवाइड इन टू पार्ट्स. For example, if it is when it comes to law, if you have IPR, intellectual property rights. So in that, what I'll do is first semester में I'll keep its theoretical aspect कि हाँ भाई तुम theory लिखो और exam में theory पढ़ो और exam में लिख के आ जाओ. But when it comes to the second semester, where IPR part 2, intellectual property rights का part 2 जब आएगा, ठीक है, तब उसमें आई विल मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाए, लाइक हाउ टू फाइल अ ट्रेडमार्क, हाउ टू फाइल अ पेटेंट और एनी आईपीज फॉर दैट मैटर. एंड उसका अलग से, उसका फिर कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं, सीधा सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका भी. कि मतलब पूरा तो नहीं, बट एटलीस्ट हम थोड़ा सा वो बच्चे को एक इंडस्ट्री रेडी करके भेजे, या तो फिर थोड़ा सा ही हम उसको एक अटेम्प्ट तो देना सिखाए कि मतलब हाउ विल थिंग्स वर्क आउट, या फिर तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी. एटलीस्ट बच्चा पूरा ब्लैंक ना हो वहाँ पे कि भाई ये तो कभी हमने सुना था क्या, या सुना है, काश हमको ये आता वो आता है, ऐसा वैसा. एंड अल्टीमेटली आई फील ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी बच्चे का दिमाग इस इस टैंजेंट पे चले कि अरे हम कॉलेज में ये सिखाना चाहिए था, ऐसे कुछ नहीं चलेगा किसी का दिमाग ऐसे. क्यों? क्योंकि वो सवाल ही वहाँ पे नहीं उठता, वो सवाल वहाँ पे पैदा ही नहीं होता है, इसीलिए उतना दिमाग चल ही नहीं पाता है किसी का. कि मतलब क्या बोलते हैं, राह से जो एक मोड़ लेना होता है ना, when you have to get down from the track or change the track and think something, that question will arise only when that particular kind of situation is created around you. But when you will not know only, वो बोलते हैं ना, गरीब को गरीबी तभी पता चलती है जब वो गरीब होता है. क्या बोला मैंने, अमीर को गरीबी तभी पता चलती है जब वो गरीब होता है. हाँ, अब भी समझ जाओ इमोशन, मतलब बात समझ जाओ, बात, हाँ इमोशन बात दोनों ही समझ जाओ एक्चुअली, जिस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ. तब बोलते बोलते मैं अपने पीजी भी पहुँच गई हूँ. भाई अभी फोन कर जाता मेरा. आज मैं पीजी पहुँच गया, आज मैं बहुत लेट आई हूँ और आज मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया है. तो वो हार्डवर्क कब काम आता है, कैसे काम आता है मुझे पता नहीं, देखते हैं. मतलब तो ऐसा ही कोई कहानी है. मतलब बोलना ये था कि मतलब मैं इसको कब यूज़ कर पाऊँगी, मैं इसको कितना याद रख पाऊँगी. यूज़ भी नहीं, गलत बोला मैंने. मतलब मैं इसको कितना याद रख पाऊँगी, कब तक याद रख पाऊँगी, वो देखना है. दैट्स व्हाट इज़ अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट. एक ट्रेजेडी बताऊं, मैं ये पाउडर खाना ही भूल गई आज, जो हेयर फॉल के लिए बनाया हुआ था. सही में इतना गुस्सा आता है ना, इसीलिए समझ ही नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं. एक तो मैं कुछ चीज़ बहुत एकदम ऐसे सीरियसली फॉलो कर रही होती हूँ और उसके बाद फिर सब कुछ घान हो जाता है. आज खुलेगा क्या मम्मी? पावर देख रहे हो मम्मी के नाम में? क्या था? जैसे कि आप सब लोग देखते हो, मेरे भाई का वीडियो कॉल आया हुआ है. अब वो जानबूझ के मुंह छुपा रहा है क्योंकि मैं उसको वीडियो में डालूंगी. बट मैं भी कम नहीं हूँ, मैं जूम करके उसको दिखाऊंगी, जूम करके. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा खाना है. बहुत कुछ था कि जैसे मैं सर पे दुपट्टा लिए बिना खाना नहीं खाती थी, ऐसा बहुत. पर मैं क्या बोलूँ, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ. बाय बाय.